What is up YouTube? Welcome to a brand new video, and in this video we're going to be discussing about how to book a flight from India to Canada if you're a student and what all things you have to keep in mind before you book the flight for yourself. And I'm going to be speaking as always in Hindi language, so maybe there are some people who wouldn't understand Hindi, like if you're from South India or from another country and you want to book a flight for yourself as a student from India to Canada or from any other country to Canada and you don't understand Hindi language, so it's alright. Just comment down below that you want an English version of this and I will make an English version of this video, but I will try my best in this video to explain every single thing to you. So without wasting any more time, let's start the video. So guys, as of today, the day I'm recording this video, it's 30th January and it's high time for you if you're going into May intake or if you want to move to Canada in April or May, then it's high time for you. You have to book the flights right now. I'm hoping that many people have already booked the flights, but if you haven't yet, so you have to book the flight within a week. Not just necessarily week, but the prices are going higher and higher every single day. So for you, it is very mandatory right now that you book your flight. And I got mine booked like 10 days ago, so I haven't had time for making this video, so I'm making this video kind of late. But anyways, I'm going to tell you every single detail in this video, that what all things you have to look before you book a flight. I will tell you every single detail, every minor detail that you have to take care of. So some things in this video we are going to talk about are that how to book flight. Well, there are two major ways to book flight, offline and online. So we will discuss what are those ways, and then we'll discuss that how many days prior you should get your flight tickets. Like if your course is starting from 8th May, because for the most of the people who are going to Ontario in Canada and they are going to college or university, the course mostly starts from 8th May. So similarly, mine also starting from 8th May. So if your course is starting from 8th May, then how many days prior you should get your flights ticket booked? Let's say 10 days or 15 days. I'm going to tell you the reasons why you should book, like 10 or 15 days prior, and what is the perfect time range to get your flights ticket booked prior to your courses. Then I'll tell you my own experience, which is my flight or my flight details. So if any one of you have already booked the same flight, we can fly together. I'm going from Delhi, so if any one of you have booked the same flight, you can contact me on my Instagram. The link is given in the description, and also you can comment on this video and I will reply to you. So if you are going from the same flight as me, we can meet at the airport and make things easier for each other by accompanying. Then we are going to discuss one of the most important part of this video, which is the things to remember before booking the flight. So you have to watch this video till the end without skipping, so you can get to know every single thing that I'm going to tell you, and everything that I'm going to tell you in this video is very important, so do not skip and watch it till the end. And lastly, I'll tell you that should you go from direct flight or indirect flight, and what's my opinion on this. So without wasting any further time, let's get into the video and start by talking about it. So guys, अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने कौन सी फ़्लाइट बुक करी है एंड मेरी कब की फ़्लाइट है. सो मेरा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा कोर्स जो है वो 8 में से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 में 2023 से, एंड मैंने अपनी जो फ़्लाइट है वो 10 to 11 डेज़ प्रायर बुक कराई है, जो कि 27 अप्रैल है. एंड मेरी फ़्लाइट्स जो है वो एमिरेट्स एयरलाइन की है, एंड 27 अप्रैल को मेरी फ़्लाइट जो है वो IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, वहाँ से फ्लाई होगी एट 4:15 PM डे टाइम. एंड फिर वो वहाँ से मेरे को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लेके जाएगी और वहाँ पे ड्रॉप करेगी अराउंड 6:10 PM पे. एंड देन मेरा वहाँ पे 9 आवर्स का लेओवर है, और मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको कितने टाइम का लेओवर लेना चाहिए, ठीक है. और मैंने अपना रीज़न भी बताऊँगा कि मैंने इतना 9 आवर का लेओवर क्यों लिया है. बट राइट नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, कि जो मेरा दुबई पे 9 आवर का लेओवर है, देन दुबई से 3:30 AM पे मेरी सेकंड फ़्लाइट फ्लाई होगी एंड वो मेरे को ड्रॉप करेगी टोरंटो YYZ एयरपोर्ट पे 9:30 AM 28 अप्रैल को. सो ये मेरा पूरा फ़्लाइट की जर्नी बेसिकली एक शेड्यूल है, और मेरे को हर एमिरेट्स की फ़्लाइट की तरह ही मेरे को भी 2 बैगेज अलाउ करे हैं, 2 लगेज बैग 23 kg ईच के, एंड 1 कैरी ऑन बैग विच इज़ 7 kg. ठीक है. बाकी बजट के बारे में, यानी जो भी प्राइसेस है उसके बारे में मैं आपको बजट वाले पार्ट में बताऊंगा कि मेरे को कितने में फ़्लाइट पड़ी है एंड मैंने कहाँ से कराई है, ठीक है. वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा. बट अभी फ़िलहाल ये मेरी फ़्लाइट का स्केड्यूल है, और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे.
अब फ़्लाइट कैसे बुक करनी है उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देता हूँ। तो बेसिकली वो क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं कि हमें कितने दिन पहले अपने कोर्स की अपनी फ़्लाइट जो है बुक करानी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो फ़्लाइट है वो 10 टू 11 डेज़ प्रायर है। नाउ मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली क्या होता है। देखो अकॉर्डिंग टू कैनेडियन लॉ अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो आप अपने कोर्स के स्टार्ट होने से 28 डेज़ पहले नहीं जा सकते। आपको 28 डेज़ की रेंज मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8th में से स्टार्ट है कोर्स तो आप 10th अप्रैल से पहले नहीं ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप करोगे तो हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। ये 28 डेज़ की रेंज होती है, इसके विदिन 28 डेज़ आपको ट्रैवल करना होता है ना। और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि आप 10 टू 15 डेज़ पहले जाओ, ठीक है। देखो कुछ लोग होते हैं वो 20-25 डेज़ भी पहले चले जाते हैं, बट उतनी की नीड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स हैं जो कि आपका वहाँ पे रहने का और खाने पीने का उतने दिन के लिए एक्सपेंस उठा सकते हैं, तब आप उस केस में जा सकते हो 20 डेज़ पहले, 25 डेज़ पहले। बट अगर आपको खुद ही सारा एक्सपेंस करना है वहाँ पे जाके, बिकॉज़ देखो पर डे का एक्सपेंस भी होता है और आप अपने कोर्स के स्टार्ट होने से पहले जॉब भी नहीं कर सकते हो, तो आप कोई मनी अर्न नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप स्पेंड कर रहे हो उन दिनों में। तो इसलिए कोशिश करो कि आप 10 टू 15 डेज़ पहले ही जाओ, उससे ज़्यादा मत करना, बिकॉज़ उतने की नीड ही नहीं है। नाउ कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमें 10 दिन पहले क्यों जाना चाहिए, हम तो 3-4 दिन पहले भी जा सकते हैं। देखो 10 दिन तो यार आपको अप्रॉक्सीमेटली लेके चलने पड़ेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे जाके भी आपको कुछ काम करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ जाके सिम कार्ड लेना है, आपको वहाँ जाके सिन नंबर एक्टिवेट करना है, आपको अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट करना है, देन आपको ड्राइविंग लाइसेंस का भी टेस्ट देना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको घर भी ढूँढना है, जॉब भी ढूँढनी है, सेटल भी होना है। तो वहाँ के जेट लैग की वजह से, टाइम डिफरेंस की वजह से आपको 1-2 दिन भी लग जाएँगे वहाँ के एनवायरनमेंट में अपने आप को हैबिचुअल करने के लिए। तो उसके लिए अराउंड 10 टू 15 डेज़ तो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इतनी रेंज तो लेके चलना। बाकी उसके ऊपर आप जाओगे तो आपका एक्सपेंस भी उतना ही होगा, तो वो आप अपने हिसाब से वो चीज़ें देख सकते हो। बाकी 10 डेज़ अराउंड तो अप्रॉक्सीमेटली आप जा सकते हो पहले। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा मेजर आ जाता है, जो कि है कि हमें फ़्लाइट बुक करनी कैसे है ना। वो फ़्लाइट बुक के जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 2 वे हैं, ठीक है। एक होता है ऑफलाइन वे और एक होता है ऑनलाइन वे। तो पहले हम ऑनलाइन वे के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन वे में आप क्या करते हो, आप एक वेबसाइट पे जाते हो, जो भी ट्रैवल की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाके आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो कि आपको कौन से एयरपोर्ट से कौन से एयरपोर्ट तक चाहिए, डेट क्या है, कौन सी क्लास चाहिए, कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें डालते हो। एंड फिर आपके सामने बहुत सारी फ़्लाइट ऑप्शंस आ जाते हैं, आप उनको चेक करते हो और उनको वहाँ से आप बुक कर देते हो, जो भी आपको बेस्ट लगता है अपने लिए ना। उसके लिए काफ़ी सारी साइट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2-3 मैं साइट्स बताता हूँ आपको। एक बहुत फेमस साइट है skyscanner.com, ठीक है। और मैंने अपने कॉपी में लिख रखी है वैसे तो, जैसे skyscanner.com है, agoda.com, मेक माई ट्रिप, और एयरलाइंस की ऑफिशियल साइट्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको एमिरेट्स से करनी है तो एमिरेट्स की ऑफिशियल साइट है, अगर आपको एयर कनाडा से करनी है तो एयर कनाडा की भी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। तो आप ऐसे इन साइट से जाके आप अपनी फ़्लाइट्स जो है वो बुक कर सकते हो ऑनलाइन तरीके से ना। ऑनलाइन में आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको बुक करने से पहले हर एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत केयरफुली तरीके से आपको चेक करना है। बिकॉज अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप खुद उसके लिए ज़िम्मेदार हो। कोई और पर्सन आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज आपने वो खुद बुक करी है, ठीक है। आप चाहे अपने भाई से बुक कराओ, बहन से कराओ, मम्मी से कराओ, पापा किसी से भी करा लो बुक, बट आप खुद कर रहे हो, यानी आपकी ही फैमिली के रिलेटिव्स या फिर कोई भी कर रहा है बंदा, तो आप किसी सेकेंड पर्सन को या फिर एयरलाइंस को, आप उस केस में अगर कोई भी चीज़ हो जाती है तो उस केस में आप एयरलाइंस को नहीं दोष दे सकते या फिर किसी और पर्सन पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर आप ऑनलाइन के वे की तरफ जाते हो तो इसलिए आपको सारी चीज़ें बहुत केयरफुल वे से करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है बुक करने से पहले, वो सारी चीज़ें ज़रूर देख लेना ताकि आप सही फ्लाइट बुक करो अपने लिए। तो बेसिकली सेकंड वे हमारा आता है ऑफलाइन वे। तो ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा आपके कोई ऑप्शंस नहीं है। एक मेजर ऑप्शन जो कि हर बच्चा जाता है ऑफलाइन में अगर वो करता है तो वो है एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू कराना। तो आप ऑफलाइन में एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपनी फ़्लाइट बुक करा सकते हो। उसमें क्या करना होता है, आपको जो भी ट्रैवल एजेंट है उससे बात करके उसको अपनी नीड्स बतानी होती है। जैसे आपको कौन सी डेट चाहिए, उसको एक डेट रेंज देनी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में चाहिए। देन उसको आप एयरलाइंस की बता सकते हो कि भाई मेरे को ये प्रेफर्ड एयरलाइंस है और मेरे को इस क्लास में चाहिए, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास, जो भी आपको चाहिए,
ठीक है, और एक बजट बता सकते हो। वैसे बजट का उतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज़ जो फ़्लाइट्स आएँगी वही आपको लेनी पड़ेंगी, आपका कुछ उसमें बजट का रोल होता नहीं है। बट फिर भी आप उसको बता सकते हो कि मेरे को इतने से इतने बजट के बीच में देखना है, ठीक है। और आप उसको ये बता सकते हो कि मेरे को लेओवर्स चाहिए या नहीं चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सारी चीज़ें जो भी हैं बेसिकली शॉर्ट में आप उसको बता सकते हो। देन उसके बाद वो सारी चीज़ें नोट करके आपके जो भी फ़िल्टर्स हैं उनके हिसाब से जो भी फ़्लाइट सही बैठ रही है आपके लिए, वो आपको सेंड करेंगे 4-5 ऑप्शंस, ठीक है। और आप उनके ऑफ़िस जाके भी उनसे बात करके देख सकते हो कि वो क्या-क्या ऑप्शंस बताते हैं। देन फाइनली आपको उनमें सेलेक्ट करके उसको पेमेंट करनी होती है एंड अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एंड देन वो फ़्लाइट आपकी बुक कर देते हैं। तो इस केस में बेटर क्या रहेगा, इस केस में बेसिकली ये रहता है कि आप किसी और से बुक करवा रहे हो, आप किसी ट्रैवल एजेंट, एक प्रोफेशनल बंदे से बुक करा रहे हो, तो वो आपको गाइड कर सकता है सही तरीके से कि कौन सी फ़्लाइट सही रहेगी, बिकॉज़ उनका रोज़ का होता है स्टूडेंट्स की फ़्लाइट का बुक करना। कोई वो पहली बारी नहीं कर रहे, ठीक है। हज़ारों स्टूडेंट्स की फ़्लाइट बुक करते हैं जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं अच्छे, तो उनका रोज़ का होता है, तो वो आपको गाइड भी कर सकते हैं कि भाई ये वाली फ़्लाइट लो या फिर ये वाली लो, और वो अपनी तरफ से सारे जुगाड़ लगा के रखेंगे कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और आपको एक बेस्ट, मतलब जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो मिले, बिकॉज़ उनको एक्सपीरियंस भी अपने क्लाइंट्स को अच्छा देना होता है। तो उस केस में आपको खुद हेडेक लेने की कोई मतलब वो नहीं है, नीड नहीं है, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस बंदे के ऊपर है, आपको सिर्फ पेमेंट करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, और जब फ़्लाइट बुक हो जाए तब आप उनसे टिकट लेनी है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी जितनी भी हेडेक है, जो भी सारी चीज़ें हैं कि कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे क्या वीज़ा चाहिए या फिर कुछ तो नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो देखेंगे। तो ये 2 वेज़ होते हैं हमारे, ठीक है। रिकमेंडेड मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि मैं अपनी तरफ से क्या रिकमेंड करूँगा आपको कौन सा वे जाने के लिए। बट अभी हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है कि आपको फ़्लाइट किसी भी तरीके से आप बुक कराओ, बट बुक कराने से पहले क्या-क्या चीज़ें आपको उसमें देखनी है, क्रॉस चेक करनी है और माइंड में रखनी है कि ये सारी चीज़ें जो है वो चेक होनी चाहिए बिफोर बुकिंग द फ़्लाइट। अगर वो सारी चीज़ें मैच करती हैं फ़्लाइट के साथ, तो उस फ़्लाइट को बुक करो, नहीं करती तो मत करना, ठीक है। तो अब उस पार्ट की तरफ हम बात करते हैं उसके बारे में। नाउ बात कर लेते हैं हम कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नाउ इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब अराउंड 5 टू 7 पॉइंट्स हैं इसमें, जो कि मैं आपको बताऊँगा। नाउ ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 7th या फिर 6th पॉइंट बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जो सारे पॉइंट्स हैं सारे इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हर पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है और सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए फ़्लाइट के साथ। नाउ फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आ जाता है कि फ़्लाइट ड्यूरेशन एंड स्टॉप्स, कि हमारे कितनी फ़्लाइट ड्यूरेशन होनी चाहिए और स्टॉप्स कितने होने चाहिए। तो बेसिकली ये आप अपने कंफर्ट के उससे देख सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्ट कि आपको कितना कंफर्टेबल है कितनी लंबी फ़्लाइट के लिए। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 30 आवर्स के ऊपर की फ़्लाइट अवॉइड करना, और उसमें 2 स्टॉप्स हो तो ठीक है, 2 स्टॉप से ज़्यादा अवॉइड करना वो वाली फ़्लाइट जिसमें 2 स्टॉप से ज़्यादा है, बिकॉज़ बार-बार आप स्टॉप चेंज करोगे तो उसमें टाइम भी लगता है और ऑब्वियसली लेओवर्स भी होंगे, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। अंटिल आपको प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा, तो आप 2 स्टॉप से ऊपर वाली फ़्लाइट के लिए मत जाना, ठीक है ना। उसके लिए कोई ऐसा बहुत ठोस रीज़न नहीं है, बट ये ठीक रहे, मतलब बार-बार फ़्लाइट चेंज करोगे, उससे आपकी खुद की बॉडी में थकावट होगी, बार-बार बोर्डिंग और फिर उतरो, फिर बार-बार चढ़ो फ़्लाइट में, तो वो हल्का प्रोसेस नहीं है, बस चेंज नहीं कर रहे हो आप, फ़्लाइट चेंज कर रहे हो। तो इसीलिए तो ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा स्टॉप्स भी ना हो। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है कि फ़्लाइट जो भी आप बुक कर रहे हो उसमें जो भी एयरलाइंस है वो कितने बैग आपको अलाउड कर रही है लेके जाने के लिए। नाउ एज़ अ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मिनिमम 2 बैग्स 23 केजी ईच के आपको अलाउड हों, ठीक है, बिकॉज़ आपके पास काफ़ी सामान होता है, तो वो 2 बैग्स में तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप ये देखना कि आप उस वाली एयरलाइन को चूज़ करना जिसमें कि 2 बैग्स अलाउड हैं। कुछ एयरलाइन में 1 बैग्स भी अलाउड होते हैं, फॉर एग्जांपल एयर कनाडा, बहुत सारे स्टूडेंट एयर कनाडा से ट्रैवल करते हैं जिसमें 1 बैग अलाउड होता है और आपको सेकंड बैग के लिए पे करना पड़ता है। तो अगर आप वो पे करना चाहते हो तो अराउंड वो 8500 कुछ होता है इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो उतना आपको पे करना पड़ता है सेकंड बैग के लिए। बट मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि आप पहले से ही ऐसी फ़्लाइट चूज़ करो जिसमें कि आपका 2 बैग्स अलाउड हो। नाउ कुछ एयरलाइंस है जो कि 2 बैग्स आपको अलाउ करती है, फॉर एग्जांपल एमिरेट्स है, इतिहाद एयरवेज़ है, यूनाइटेड एयरलाइंस है, टर्किश एयरवेज़ है। तो ये सारी एयरलाइंस जो हैं वो आपको 2 बैग्स अलाउ करती हैं विद 1 कैरी ऑन बैगेज। तो आपको ये चेक करना है फ़्लाइट बुक करने से पहले कि आपकी कौन सी एयरलाइन में कितने बैग अलाउड हैं, ठीक। और अगर आपको एक्स्ट्रा बैग के लिए पे करना है तो वो ऑब्वियसली आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं।
नाउ थर्ड पॉइंट इटसेल्फ आ जाता है एयरलाइंस का। नाउ एयरलाइंस जो है वो ट्रस्टेड होनी चाहिए, उसके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए और वो खुद भी अच्छी होनी चाहिए। नाउ इसके लिए काफ़ी रीजंस हैं। बेसिकली ये इसलिए होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जितनी अच्छी एयरलाइंस होगी उतनी ही अच्छी आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका बैगेज लॉस हो जाता है या फिर प्लेन के अंदर ही कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो अगर एयरलाइंस खुद अच्छी होगी तो आपको बेस्ट हॉस्पिटैलिटी के साथ वो ट्रीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एमिरेट्स फ़्लाइट है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि मैंने ये वाली फ़्लाइट इसलिए ली है क्योंकि ये एमिरेट्स की है। ठीक है, तो एमिरेट्स में इकोनॉमी क्लास में ही आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है कि लाइक मतलब दूसरी फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास में भी इतना अच्छा नहीं मिलता है, इतना एमिरेट्स की इकोनॉमी में मिलता है। तो इसलिए मैंने ये फ़्लाइट चूज़ करी है कि इन केस मेरा कुछ भी दिक्कत हो गई, कहीं भी कुछ भी बीटी हो गई, तो उस चक्कर में एमिरेट्स अपना जो भी फ़्लाइट अटेंडेंट्स हैं उनको बेस्ट हॉस्पिटैलिटी और बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट करती है। तो इसलिए अगर आपको अपना एक्सपीरियंस अच्छा रखना है फ़्लाइंग का, तो इसलिए अच्छी एयरलाइंस होनी चाहिए। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मेरे को तो सिर्फ यहाँ से कनाडा पहुँचना है, कैसा भी एक्सपीरियंस हो बस मेरे को जाना है, तो एक अलग बात है। बट अगर आपको अपना फ़्लाइंग एक्सपीरियंस भी अच्छा रखना है तो उसके लिए फ़्लाइट जो एयरलाइंस हैं वो खुद भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छी एयरलाइन में आपको खाना भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो फूड की क्वालिटी और ये सब भी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो ये आप देख के रखना, ये मतलब देख के लेना अपनी फ़्लाइट कि आप कौन सी एयरलाइंस के ले रहे हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ड्यूरेशन, स्टॉप्स और फूड क्वालिटी, इन सब से हटकर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो और वो है सेल्फ ट्रांसफ़र का पॉइंट। तो बेसिकली सेल्फ ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी लेओवर वाली फ़्लाइट है, ठीक है, जिसमें आपकी 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ से दुबई जा रही है, फिर दुबई से कनाडा। तो मेरी में तो सेल्फ ट्रांसफ़र नहीं है, बट अगर मेरे में सेल्फ ट्रांसफ़र होता तो क्या होता? तो मेरे को क्या करना पड़ता, जैसे मैं यहाँ से दुबई जाऊँगा, ठीक है, दुबई पे मेरे को अपने जितने भी बैगेज हैं वो सब मेरे को मिल जाते, ठीक है, और फिर मेरे को वो बैगेज क्लेम करके दोबारा अपनी सेकंड फ़्लाइट के लिए वो सब बैगेज की लाइन में खड़े होके दोबारा बैगेज देने पड़ते और सारा पूरा प्रोसेस जो है वो सब कुछ दोबारा होता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इमिग्रेशन, ऑब्वियसली इमिग्रेशन वगैरह का प्रोसेस नहीं होता है, बट जो भी बीच में बैग लेने के, देने के, फिर ये सारे जो प्रोसेस होते हैं दोबारा होते हैं। तो बेसिकली सेल्फ ट्रांसफ़र का ये मतलब है कि आपको आपके जो बैग्स हैं वो सब आपको खुद ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जो नॉर्मल फ़्लाइट्स होती है उनमें एयरलाइंस खुद ट्रांसफ़र करती है, बट सेल्फ ट्रांसफ़र वाले में आपको खुद करने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेसी और हेडेक होता है इसमें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाता है। और हो सकता है किसी किसी केस में ये भी हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी पहली फ़्लाइट में 2 बैग्स अलाउड है और दूसरी वाली फ़्लाइट में 1 बैग अलाउड है, तो सेल्फ ट्रांसफ़र के टाइम जो सेकंड फ़्लाइट है उसमें आपको बोल दें कि आप जो सेकंड बैग है आपको उसके लिए पे करो, तो आपको वहाँ पे वो पे करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली बैग अपना छोड़ के तो जाओगे नहीं, तो सेकंड बैग के लिए पे करना ही पड़ेगा। तो सेल्फ ट्रांसफ़र में ये वाली दिक्कत भी हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि एयरपोर्ट भी चेंज करने को बोलते हैं कि आपको इस एयरपोर्ट से एग्जिट करके दूसरे एयरपोर्ट से दूसरी फ़्लाइट लेनी है, तो वो भी बिल्कुल मत करना और सेल्फ ट्रांसफ़र भी बिल्कुल मत लेना, ये बहुत बेकार चीज़ है। ठीक है, आपको खुद सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जो कि ऑब्वियसली आप इतना पैसा दे रहे हो तो किस लिए दे रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए तो दे रहे हो। तो इसलिए को अपना ये देखना कि आपको किसी भी स्टॉप पे सेल्फ ट्रांसफ़र आपका ना हो। नाउ फिफ्थ पॉइंट हमारा एक आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी छोटा सा पॉइंट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांजिट वीज़ा। यानी आप अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वाली फ़्लाइट ले रहे हो, अगर आपकी इनडायरेक्ट फ़्लाइट है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि किसी भी एयरपोर्ट पे आपको ट्रांजिट वीज़ा की नीड ना पड़े। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप वाया यूएसए वाली फ़्लाइट लोगे ना, जैसे यहाँ से कोई एक कंट्री, फिर वहाँ से यूएसए एंड देन यूएसए से कनाडा, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि यूएस में आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है ना। लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम एयरपोर्ट से बाहर तो जा नहीं रहे, तो ट्रांजिट वीज़ा क्यों चाहिए। बट ऐसा भी होता है कि आपको कंट्रीज़ में जाने के लिए भी ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, उनके एयरपोर्ट पे भी। तो इसलिए अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो पहले ही फ़्लाइट ऐसी चूज़ करना जिसमें ट्रांजिट वीज़ा की नीड ही ना हो। ठीक है, आप ऐसे रूट से लेना अपनी फ़्लाइट जो कि जिस पे कि ट्रांजिट वीज़ा ना ज़रूरत पड़े जिस पे। अगर आप ऑनलाइन बुक कराते हो तो साइट्स पे ही लिखा होता है उन पे जहाँ से आप बुक कराते हो कि इस वाले एयरपोर्ट पे ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आप एजेंट से कराते हो तो एजेंट तो आपको सारी चीज़ें खुद बता ही देता है। तो इसलिए ये मेक श्योर करना कि आपको ट्रांजिट वीज़ा कहीं पे भी ज़रूरत उसकी ना पड़े। नाउ सिक्स्थ पॉइंट हमारा आ जाता है, बहुत ही माइनर पॉइंट है और मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई आपको इतनी डिटेल्स में नहीं बताएगा जितनी मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आपको अगर अभी तक अच्छी लगी है वीडियो तो सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और कमेंट करना, शेयर करना उन लोगों के साथ जो कि मेन टेक में जा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ हम सिक्स्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि है हिंदू नॉन वेज और वेज मील।
तो जब भी आप अपनी फ़्लाइट को बुक कर रहे हो तो उस टाइम पे, बुकिंग के टाइम पे आपसे ये पूछा जाता है, मतलब जब कंफर्म हो जाती है तब आपको सीट पूछी जाती है और उसके साथ आपको मील पूछा जाता है कि आप कौन सा मील लेना पसंद करोगे। तो मेक श्योर करना कि अगर आप खुद बुक कर रहे हो तो आप ये लिख रहे हो वहाँ पे, और अगर आप एजेंट से करवा रहे हो तो वैसे तो एजेंट्स में इतना दिमाग होता है कि वो खुद ही लिख देंगे कि वहाँ पे आप जब भी बुक करा रहे हो तो वहाँ लिखा हो कि आपका हिंदू वेज मील या नॉन वेज मील है आपका। वरना क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एमिरेट्स की फ़्लाइट है तो एमिरेट्स में अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे ना कि भाई हिंदू वाला हमें चाहिए, हिंदू वेज या नॉन वेज मील चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो उनका एमिरेट्स का जो खुद का वेज फूड होगा वो आपको दे देंगे, या फिर अगर आप नॉन वेज हो तो नॉन वेज जो फूड होगा वो आपको दे देंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वेज नॉन वेज मील के साथ आप हिंदू ज़रूर लिखो, बिकॉज हिंदू नहीं लिखोगे तो उनको ये समझ नहीं आएगा कि आपको इंडियन फूड चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप टर्किश एयरवेज से फ्लाई करोगे और आप उसमें सिर्फ ये लिख के छोड़ दोगे कि वेज मील, तो आपको टर्किश का जो नेटिव फूड है, वेज का जो उनका नेटिव फूड है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पापा के साथ भी ऐसा हुआ था, वो जब फ्लाइट में गए थे तो उन्होंने ये मेंशन नहीं करा था और उनको कहीं और का ही वेज फूड दे दिया था, तो उनको वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप अपनी फ़्लाइट को बुक करोगे तो आप मील के टाइम पे हिंदू ज़रूर लिख दोगे ताकि आपको इंडियन फूड मिले। नाउ हम अपने लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड दैट इज़ बजट। दैट लाइक कितने की आपको फ़्लाइट पड़ेगी या फिर कितने की आपको फ़्लाइट लेनी चाहिए। नाउ लेनी चाहिए वाला कोई सीन ही नहीं होता इसमें, बिकॉज जितने की आपको मिल रही है आप उतने की ही लोगे। ठीक है, बट आपकी फ़्लाइट जो है वो आपके बजट में भी होनी चाहिए, ये आपको मेक श्योर भी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको 1 लाख या 1,10,000 की फ़्लाइट अगर मिल रही है तो उसको छोड़ के आप 2 लाख की फ़्लाइट उठा लो, तो ऐसा मत करना। तो बिकॉज़ क्योंकि ना ये फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपेंस देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 50,000 60,000 एक्स्ट्रा देने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम मोर फैसिलिटीज़ दैट यू विल गेट। तो इकोनॉमी क्लास ही मैं प्रेफर करूँगा, जिसकी पर्सनली चॉइस है बिज़नेस क्लास में जाने की या फर्स्ट क्लास में जाने की, भाई अंत का पैसा है तो भाई अलग बात है। बट मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा इकोनॉमी क्लास, मेरी भी इकोनॉमी है, क्योंकि बिज़नेस क्लास या फर्स्ट क्लास में जाने का ठीक है एक्सपीरियंस की बात है, लेकिन उतना कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। ठीक है, अगर आप एक फ़र्स्ट क्लास में जा रहे हो तो फ़ायदा है, तो आपको पूरा कैबिन सा मिलता है। बट अगर आप बिज़नेस क्लास में जा रहे हो तो बिज़नेस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप अपने पैर स्ट्रेट कर सकते हो बिज़नेस क्लास में बस, और थोड़ा बहुत आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा। बाकी इकोनॉमी क्लास अच्छी होती है, और आपकी फ़्लाइट जो है वो बजट में होनी चाहिए आपकी, ये आपको ज़रूर देख के रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस ऑप्शंस के लिए भी मत जाना, क्योंकि वो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको फ़्लाइट का एक्सपीरियंस आपका है, अच्छी बात है, बट मेन आपका है कि आपको कनाडा पहुंचना है, तो इसलिए कोई वो फ़्लाइट में ही आप अपना अंत का पैसा मत खर्च कर देना। और अच्छी फ़्लाइट में जाना, अच्छी एयरलाइन चूज़ करना, बट अच्छी एयरलाइन चूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप अंत की ओवर प्राइस ले लो। ठीक है, 2 लाख 3 लाख की आप फ़्लाइट ले लो तो उतने की नीड ही नहीं होती। 1.5 लाख की आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही है यहाँ से एयर कनाडा की, तो आप वो भी ले सकते हो। बट एनीवेज़ आपका जो है वो बजट में होना चाहिए सब कुछ, और जितने मैंने अभी तक आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सब मैच होने चाहिए आपके फ़्लाइट के साथ। ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने नहीं देखे और यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, ठीक है, अभी तो मैं बहुत लाइक मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं है कुछ, बट मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। ठीक है, बाकी अब हम अपनी लास्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि अब आपको इनडायरेक्ट फ्लाइट लेनी चाहिए या फिर डायरेक्ट फ्लाइट लेनी चाहिए। तो अब आपको डायरेक्ट लेनी चाहिए या फिर इनडायरेक्ट लेनी चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर। ठीक है, दोनों ही बढ़िया होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में कोई ख़राबी है। दोनों फ़्लाइट्स बढ़िया होती है, दोनों फ़्लाइट्स आपको इंडिया टू कनाडा या फिर आपकी कंट्री से कनाडा तक लेके जा सकती हैं और लेके जाएंगी बिना किसी बीटी के। तो दोनों फ़्लाइट्स बढ़िया होती हैं, सिर्फ इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है ना, मैं वो डिफरेंसेस बता देता हूँ और अपना ओपिनियन बता देता हूँ। तो मेरा ओपिनियन है कि इनडायरेक्ट फ़्लाइट के लिए है। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्ट फ़्लाइट प्रेफर करूँगा। अगर मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मैं इनडायरेक्ट फ़्लाइट प्रेफर करूँगा। उसके लिए कुछ रीज़न्स हैं। तो सबसे पहले रीज़न तो बहुत मेजर रीज़न ये है कि आपका बहुत पैसा बच जाता है जब आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट से जाते हो। 1,10,000 की अभी आपको इनडायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही है, ठीक है, या फिर मिल जाएगी, और डायरेक्ट आपको 50,000 60,000 ज़्यादा की पड़ेगी। तो इतना 50,000 रुपये आपके सेव हो रहे हैं भाई, वो वहाँ जाके किसी चीज़ में लगा देना, बट फ़्लाइट में देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मेजर फर्स्ट रीज़न तो है कि आपका बहुत पैसा सेव होता है। सेकंड रीज़न है कि आपको डिफरेंट एयरपोर्ट्स एक्सपीरियंस करने को मिल सकते हैं। आपका जैसे अब मैं जा रहा हूँ, मैं दुबई एयरपोर्ट भी देख लूँगा पूरा, भाई 9 घंटे का लेओवर है, तो दुबई एयरपोर्ट मैंने सुना बहुत बढ़िया है।
तो वहाँ पे भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो अगर आपको खुद भी ये चीज़ करनी है तो आप इंडायरेक्ट के लिए जा सकते हो कि आप डिफरेंट एयरपोर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर आपका थर्ड रीज़न ये आ जाता है कि आपको एक ही जगह पे 16, 17, 18 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बीच में रेस्ट मिल जाएगा। जैसे मेरी यहाँ से दुबई तक 3 घंटे की फ़्लाइट है, फिर वहाँ से टोरंटो तक 14 आवर्स की फ़्लाइट है। चलो 14 आवर्स तो बैठना पड़ेगा, बट फिर भी एक बीच में एक स्टॉप मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आप रिफ़्रेश वगैरह हो सकते हो। तो वो सारी चीज़ें वो होता है कि आपको एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं बैठना पड़ेगा। अगर आपने पहले इतनी देर की फ़्लाइट एक्सपीरियंस नहीं करी है तो इंडायरेक्ट ज़्यादा बढ़िया है। बाकी और भी काफ़ी सारी एडवांटेजेस होती हैं यार इंडायरेक्ट फ़्लाइट की, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इंडायरेक्ट के लिए जाना, और जब खुद एक्सपीरियंस करोगे तब आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। अब मैं हर एक छोटी चीज़ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी वो तो नहीं बता सकता मैं, ठीक है, बिकॉज मेरे को भी जाना है, मैं अभी गया नहीं हूँ। बाकी आप डायरेक्ट के लिए भी जा सकते हो। अगर आपको लाइक टाइम की आपके पास कमी है, आपको जल्दी पहुँचना है वहाँ पे, तो आप डायरेक्ट में भी जा सकते हो, वरना इंडायरेक्ट का भी ऑप्शन है और वो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। जस्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी किसी भी स्टॉप पे सेल्फ ट्रांसफ़र ना हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, किसी भी लेओवर पे सेल्फ ट्रांसफ़र ना हो, और जो लेओवर्स है वो बहुत ज़्यादा ना हो, लाइक 8-8, 10-10 घंटे के वो लेओवर ना हो। तो मेरा ये रीज़न मैं आपको बता दूँ कि मैंने 9 आवर्स का क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पे और ऑप्शंस नहीं थे। मेरे को एक फ़्लाइट मिली थी 20 अप्रैल की, जो कि बहुत जल्दी हो जाता, मेरे को उतनी जल्दी की चाहिए नहीं थी, ठीक है, और 27 के आसपास की डेट रेंज में, 25 के आसपास की डेट रेंज में, और इस प्राइसेस में मेरे को और कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि 9 आवर्स का लेओवर मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, दुबई एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे घूम लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें ली है। और फाइनली मैं अपना प्राइस बता देता हूँ कि मैंने कितने में ली है। मेरी जो फ़्लाइट है एमिरेट्स की, जो मैंने आपको डिटेल सारी बताई थी, वो है 1,09,000 की मेरे को फ़्लाइट पड़ी है, 1 सीट। ऑब्वियसली मेरे अकेले की तो 1 सीट ही होगी, तो उसका प्राइस 1,09,000 मेरे को पड़ा है। बट अब वो फ़्लाइट आई गेस ज़्यादा की हो गई है, ठीक है, 1,10,000 के अराउंड वो फ़्लाइट हो गई होगी। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था जो मैं अब शूट कर रहा हूँ, कि मैंने अपनी जो टिकट कराई है 1,09,000 की, वो मैंने ट्रैवल एजेंट से कराई है। ऑनलाइन भी मैंने बहुत सारी, जितनी मैंने आपको साइट्स पर्सनली बताई थी, उन सब पे देखा था। 1 महीने तक मैंने रेगुलर चेक रखा था कि क्या कौन सी फ़्लाइट कैसे मिल रही है। बट ऑनलाइन में फिर मैं लास्ट में सोचा कि चल ट्रैवल एजेंट से ही करा लेता हूँ, बिकॉज़ उनके साथ, जैसे मैंने पहले बताया था, कि सेफ्टी ज़्यादा होती है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारे लिए हेडेक कम होता है, तो हमको तो वही चाहिए भाई। तो इसलिए मैंने ट्रैवल एजेंट से अपनी बुक कराई है। अगर आपको ट्रैवल एजेंट आपके पास कोई नहीं है तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं ट्रैवल एजेंट का नंबर डाल दूँगा, ठीक है। वो दिल्ली में उनका ऑफिस है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ऑफिस भी जा सकते हो, वरना आप उनसे कॉल पे बात करके बुक करा सकते हो। मैं तो ऑफिस नहीं गया, मैं कॉल पे बात करके मैंने बुक करा दी थी और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आपको करानी है तो मैं उनका नंबर आपको दे दूँगा, अगर आप कमेंट डाउन करोगे तो, ठीक है। बाकी यही बताना था कि मैंने ट्रैवल एजेंट से बुक कराई है अपनी टिकट। एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अभी तक आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लोगों से बेटर कर रहे हो। बहुत लोग तो शुरू में भाग जाते हैं वीडियो के, मेरे को पता है, ठीक है। तो बहुत लोगों से आप बेटर हो, और आप अपनी फ़्लाइट ढंग से कराना। जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको, उन सबको ध्यान में रख के कराना। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी छोटी छोटी भी कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और बस फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी मैं जैसे आज 30 है तो कल 1 को, नहीं, जनवरी है ना, तो 31, तो अभी मैं 1 फरवरी को मैं जा रहा हूँ उदयपुर। तो इसीलिए उदयपुर के मेरे कुछ व्लॉग्स आएंगे, ठीक है, ट्रैवल व्लॉग्स है, घूमने जा रहा हूँ मैं 1 हफ्ते के लिए, बहुत टाइम बाद। तो इसलिए कुछ मेरे अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो कुछ ट्रैवल व्लॉग्स की होंगी, ठीक है, यहाँ से उदयपुर की एंड उदयपुर के, और जो भी हम एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी हम अपनी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड क्या बोलता हूँ मैं लास्ट में, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, कीप हसलिंग, बाय बाय। एंड स्पेशली सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब कुछ कर देना भाई, बिकॉज चैनल भी ग्रो होना चाहिए। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, कीप हसलिंग, बाय बाय। Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that